ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ۔ اور منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ۔ اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ اور کسی کی جے وجے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ زباں سے جب میرے آقا کی مدحت ہونے لگتی ہے، زباں سے جب میرے آقا کی مدحت ہونے لگتی ہے، تصور میں مدینے کی زیارت ہونے لگتی ہے، تصور میں مدینے کی زیارت ہونے لگتی ہے۔ اگر بڑھ جائے دل کی الجھنیں ہرگز نہ گھبرانا، اگر بڑھ جائے دل کی الجھنیں ہرگز نہ گھبرانا، درود مصطفیٰ پڑھنے سے راحت ہونے لگتی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ پڑھنے سے راحت ہونے لگتی ہے۔ نبی کا نام لے کر جب کبھی گھر سے نکلتا ہوں، نبی کا نام لے کر جب کبھی گھر سے نکلتا ہوں، سفر میں غیب سے میری حفاظت ہونے لگتی ہے، سفر میں غیب سے میری حفاظت ہونے لگتی ہے۔ درود پاک محمد وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت جیسا کہ حضرت نے آپ کو بتایا کتاب کے قریب میں جلسہ بھی ہے اور وہاں سے بھی دعوت ملی ہے، تو جانا ضروری بھی ہے، اس لیے آج حساب کتاب میں تقریر سن لیا جائے، تھوڑا اور زیادہ ٹائم تک انشاءاللہ 4 تاریخ کو چلا دیا جائے گا، آج کی کمی پوری کر دی جائے گی، تو راضی ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آمین۔ یہ محفل نور ہے جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں۔ حالات کا آپ جائزہ لیجئے، وقت کے نزاکت کو سمجھیے، تو یہ بات اظہار من الشمس ہے کہ ہمیں اور آپ کو اب رہنا کیسے چاہیے، ہمارا حلیہ کیا ہونا چاہیے، ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان زیادہ تر پسند کیا کرتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کی پسند اگر دیکھی جائے صحیح معنوں میں، اسے میں اوریجنل مسلمان کی بات نہیں کرتا، آج کا ہی مسلمان ہے ایک چائے پلائیے بات کا جھوٹ بلوائیے، یہ ریئل ہے، سامنے کی بات کرتا ہوں، میں ڈر کے تھوڑی نہ بولتا ہوں یار۔ جھوٹی گواہی دلوانی ہو تو ان کو لے جائیے، لگانا بجانا ہو تو ان کو لے جائیے، دو بھائیوں میں جھگڑا کروانا ہو تو ان کو لے جائیے، نہ سمجھو گے تو مل جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان کبھی نہ ہوگی داستانوں کی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ سمجھو اس بات کو، پسند کیا کرتا ہے رفیق صاحب؟ آج کے لوگوں کی پسند تو ناچ ہے، آج کے لوگوں کی پسند تو گانا ہے، آج کے لوگوں کی پسند تو ہوٹل بازی ہے، آج کے لوگوں کی پسند تو خرافات ہے۔ میں تیرے پسند کی بات نہیں کروں گا، مجھے دیکھنا یہ ہے صدیق اکبر کی پسند کیا ہے، فاروق اعظم کی پسند کیا ہے، عثمان ذوالنورین کی پسند کیا ہے، مولا علی کی پسند کیا ہے، حسن مصطفیٰ کی پسند کیا ہے، غوث اعظم کی پسند کیا ہے، غریب نواز کی پسند کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی پسند کیا ہے۔ تو اس پسند کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک شعر بن کے تیار ہوتا ہے۔ دولت پسند ہے، خزینہ پسند ہے، سب کو غبارے لاتے سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
जिंदाबाद ताज शरिया आला हजरत अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और लालों में पसंद है मुझे आमीना का लाल। वैसे कलीम भाई आपका भी लड़का है, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रखे। लेकिन अगर मैं आपके लड़के की तारीफ करूंगा तो हो सकता है किसी आदमी को बुरा लग जाए। जमती है इसलिए तारीफ कर रहे हैं, तो फिर मैं किसकी तारीफ करूं? न भारत का रहने वाला नाराज हो, न बरतानिया का रहने वाला नाराज हो, न सऊदिया का रहने वाला नाराज हो। अरे दुनिया के इस कोने से लेकर के उस कोने तक जहाँ कहीं भी रहने वाला हो वो नाराज न हो, बल्कि दुआएं दे। तो निजामी का जुमला नोट करो, लालों में पसंद है मुझे आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आमीना के लाल की तरह किसी का लाल नहीं, और शहरे मदीना की तरह कोई शहर नहीं। इसलिए आमीना का लाल सबसे लाजवाब है, और जहाँ मेरा नबी आराम फरमा है वो शहर तमाम शहरों में लाजवाब है। ने बताया था ना निस्बत से शय मुमताज होती है। तो मदीना की जमीन को निस्बत आमीना के लाल से, ये मिलाद मुस्तफा है। और मैं सोचता हुआ कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू मैं आपसे आज मिलाद पाक पे करूं। बड़ी खुश नसीबी की बात है, आपने अपने दरवाजे पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया। सवाल ये पैदा होता है, आपने रुपया खर्चा किया, पैसा खर्चा किया, कहीं आपका ये पैसा का खर्चा करना फजूल तो नहीं है? हो सकता है किसी के जहन में बात बैठ जाए और कहे इतना रुपया खर्च करने से फायदा क्या है। तो सबसे पहले एक बात सुनो, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के जितना सोना होता तो मैं सब नबी के मिलाद पे खर्च करता। अगर मेरे पास उहुद पहाड़ की जितना सोना होता तो मैं सभी नबी के मिलाद पर खर्च कर देता। पता ये चला नबी के मिलाद पर खर्च करना ये फजूल नहीं है, सरापा वसूल है। अब इसी जिम्मे में मैं आपसे बात करूंगा और दो चार बातें आपके सामने रखूंगा, फिर तकरीर पाइए अपने तक पहुंचाऊंगा। अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी राज़दारे नबुव्वत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला अबू बकर सिद्दीक मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअतिन नबी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने नबी के मिलाद पर जुमले को पेश कीजिएगा, जिसने नबी के मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जिसने नबी के मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अच्छा, जन्नत को हमने देखा है, आपने देखा है? उलमाए किराम से पूछिएगा क्या आपने देखा है, तो सबका जवाब होगा देखा नहीं है, नबी से सुना है। हमने देखा नहीं है लेकिन अकीदा है, ईमान है। इसलिए मेरे नबी ने बताया है, आका की हर बात पे हमारा ईमान है। जन्नत है। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, जिसने नबी के मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हजरत अबू बकर का ऐलान है। तो आप काबिज सबको तो मेरा ये जुमला लिखो और नोट करो कि जिस तरह से जन्नत के होने पर ईमान है, ऐसे हजरत अबू बकर के जन्नती होने पर ईमान है। इसलिए नबी ने फरमाया जन्नत है तो हमने मान लिया है, और नबी ही ने फरमाया है अबू बकर जन्नती है, ये भी मानना पड़ेगा। और जो मानेगा नहीं मुसलमान रह नहीं सकता है, जो नहीं मानेगा वो ईमान वाला हो नहीं सकता है। तो आप जरा गौर फरमाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया, जिसने आका के मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। पता ये चला आका के मिलाद पर खर्च करना ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने का एक बेहतरीन रास्ता है। और अल्लाह जिससे चाहता है ये नेक काम ले लिया करता है। तो
तो अपने घरों पर, अपने दरवाजों पर आका के मीलाद की महफिल का एहतमाम किया करो। इससे अकीदा बचता है और ईमान में ताजगी आ जाया करती है, ईमान में निखार आ जाया करता है। सुभान अल्लाह। यही पर बस नहीं बल्कि इमामुल आदिलीन, गौजुल मुनाफिकीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयद उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल या उमर मन ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, जिसने नबी के मीलाद पाक की ताज़ीम की, इज्जत की, एहतराम किया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की है, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। ए महफिल पाक में आने वाले लोगों, अब मैं आपसे इल्तिमास करूंगा और आपसे कहूंगा, जब भी अपने घरों से निकलो और ऐसी पाकीज़ा महफिलों में आया करो तो अदब के साशे में ढल के बैठ जाया करो, मोहब्बत के साथ बैठ जाया करो, अपने सरों को ढांप लिया करो और ये जान लिया करो ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, मदीना के ताजदार की महफिल है। ये किसी नेता की महफिल नहीं है, मदीना के दूल्हा की महफिल है। हज़रत उमर ने क्या फरमाया, जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की, इज्जत की, एहतराम किया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब अगर उलट करके आप सोचिएगा, जिसने मीलाद की ताज़ीम की है उसने इस्लाम को जिंदा किया है, जिसने तौहीन किया है उसने क्या किया, या अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब इसे कौन बताएगा? इसे वो नहीं बता सकता है जिसके सारे अकाइद किसी नाले में पटे हो, इसे वो भी नहीं बताएगा। जिसने बराहीने कातिया लिखा हो, इसे वो भी नहीं बताएगा। जिसने तहज़ीरुन नास लिखा हो, इसे वो भी नहीं बताएगा। जिसने सिराते मुस्तकीम लिखा हो, इसे वो भी नहीं बताएगा। जिसने तहज़ीरुल ईमान लिखा हो, अरे इसे वो बताएगा जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना हुआ है, इसे वो बताएगा। तो भारत में रहता है लेकिन जानो दिल को मदीना मनव्वरा का तवाफ करवाता रहता है, तो हमेशा ऐलान करता रहता है, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, इसे वो नहीं बताएगा। अरे इसे कोई आला हजरत नहीं बता सकता है, अगर इसे बताएगा तो आला हजरत बताएंगे, इमाम अहमद रजा खान बताएंगे। कौन अहमद रजा? मामूली मत समझना, अहमद रजा कैसी शख्सियत का नाम है, अहमद रजा कैसे आबकारी हस्ती का नाम है, अहमद रजा बाहर से देख तो अहमद रजा और अंदर से देख तो अहमद की रजा, ये इमाम अहमद रजा है। माना अरब ने तुझको ये गाना, पाया आजम ने तेरा तराना, गाने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। और अहमद रजा जरा कायद की दुनिया में आओ और सरकार आला हजरत की अजमत का मीनारा देखो, फिर समझ में आएगा कौन अहमद रजा। हाँ वो अहमद रजा। अरे भारत की सरजमीन पर सरकार गाजी पाक का बड़ा एहसान है, भारत की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का बड़ा एहसान है, भारत की सरजमीन पर महबूब इलाही का बड़ा एहसान है, भारत की सरजमीन पर चिराग दहलवी का बड़ा एहसान है, भारत की जमीन पर मखदूम सिमला का बड़ा एहसान है। आप पूछोगे क्या एहसान है, तो मेरा फलक के जवाब ये होगा, एहसान ये है ख्वाजा आए उन्होंने मुसलमान बनाया, मखदूम अशरफ सिमलानी आए उन्होंने मुसलमान बनाया, सरकार गाजी पाक आए उन्होंने मुसलमान बनाया। तो सुनो, अगर ख्वाजा गरीब नवाज ये मुसलमान बनाने वाले का नाम है तो अहमद रजा ये अकीदा बचाने आगे बढ़ करके एक जुमला और देने जा रहा है। अगर अजमेर में मुसलमान बनाने वाला लेटा है तो बरेली में अकीदा बचाने वाला जवाब है, बचाने वाले का जवाब है। कौन बताएगा? मीरा की महफिल सजाता कौन है, ताज़ीम कौन करता है? जाहिर सी बात है जो सजाएगा वही ताज़ीम करेगा। और ये पैगाम कौन दे रहा है? हमारा और आपका इमाम दे रहा है। हश्र कब डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र कब डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिरते जाएंगे, खाक हो जाए अबू जल का, मगर हमको रजा तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाओ। अल्लाह अकबर, या शुक्रिया, जिंदाबाद, ताजुस शरिया ताजुस आला हजरत मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह अभी मुस्तकीम भाई ने नारा लगाया हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। मैं भी तो यही कहता हूँ, सारे राजा मर गए, मेरा ख्वाजा जिंदा। वैसा है सारे राजाओं के छक्के छुड़ा करके किसने रख दिया? इसे सिर्फ राजा नहीं, भारत का ख्वाजा कहा जाता है। और भारत का ख्वाजा बना के मेरे ख्वाजा को किसी दुनिया काम में नहीं, मदीना के ताजदार ने भेजा है। और जब भेज दिया तो जमाना एक तरफ, मोइनुद्दीन एक तरफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाना एक तरफ, मोइनुद्दीन एक तरफ। बात क्या है? मेरा ख्वाजा भारत की जमीन पर जमीन फैलाने के लिए नहीं आया था, दीन फैलाने के लिए आया था। तो जमीन फैलाने के लिए आता है, मरता है तो मर जाता है, लेकिन जब दीन फैलाने के लिए आता है, जमीन पर रहता है तब भी जिंदा, जमीन में है तब भी जिंदा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। इसकी वजह यही है, मेरा ख्वाजा नबी का भेजा हुआ है। मेरे नबी ने नुमाइंदा बना करके भेजा है। यही तो वजह है। पूछो तारीख नवेशों से, पूछो पढ़े लिखे लोगों से। मेरा ख्वाजा वहां से भारत तक चला आया। कहीं आपने पढ़ा है कि किसी से रास्ता पूछा हो? नहीं। मोदी से पढ़ो, किसी ने नहीं पढ़ा। अच्छा, किसी आलिम ने आज तक बोला? नहीं। आपने सुना कि ख्वाजा ने रास्ता मालूम किया, हिंदुस्तान जाना है भैया, कैसे कैसे जाओ? किसी से नहीं पूछा। अरे पूछेगा क्या जब मेरे नबी ने भारत का पूरा नक्शा दिखा दिया था, मेरे नबी ने पूरा रास्ता बता दिया था, सब समझा दिया था। यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ये पड़ेगा, ये मरहला आएगा, यहाँ आना सागर होगा, यहाँ खेमा लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब बता दिया। तो जब बताने वाला आमीना का लाल होता है, आने वाला गरीब नवाज होता है, तो ना भेजने वाले का जवाब है ना आने वाले का जवाब। बेमिसाल शख्सियत। तो अंदाजा लगाओ, बात चल रही थी मीलाद की। खलीफा-ए सोम सैयदुल अफ़िया जामिल कुरान हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला या उस्मान मनन फ़क़ादिर अमन अला क़िराअतिन नबी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वकाना फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदरी व हुनैन। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसने नबी की मीलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया, गोया वो बदर और हुनैन के जिहाद में शरीक। जिसने नबी के मीलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया, गोया बदर और हुनैन के जिहाद में शरीक हुआ। वहाँ मुजीब साहब, मैदान बदर में क्या हुआ है, मैदान हुनैन में क्या हुआ है, मैदान उहुद में क्या हुआ है? सही से आसान बोली जाए तो यही कहा जा सकता है, गला कटा है, सीना छलनी हुआ है, लाश तड़पी है, बाजू कटा है, जख्मी हुए हैं। ये नबी के मीलाद पर एक तिहान खर्च करेगा, अल्लाह ताला उसे बदर और हुनैन में जाने वालों के तरह सवाब अता फरमाएगा। इसलिए वहाँ जंग की बात है या मुस्तफा के मीलाद की बात है। नबी का मीलाद अगर ना होता तो ये इस्लाम हमको कैसे मिलता? नबी का मीलाद ना होता तो हम और आप कैसे होते? ये जमीन नहीं होती, ये आसमान नहीं होता, ये चांद नहीं होता, ये सूरज नहीं होता, ये सितारे नहीं होते, ये आकाश नहीं होता, ये पाताल नहीं होता, ये धरती नहीं होती, ये गगन नहीं होता, ये चंद्रमा नहीं होता। तब मेरे रज़ा ने कहा है, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहल में सभा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। सारी कायनात का वजूद अगर है तो मिलाद पाक का सदका है। अब बताओ, सुन्नी मुसलमान नबी के मीलाद को भूल कैसे सकता है? जो भूल गया वही तो एहसान फरामोश है।
तीजा हो तब भी हम मीलाद करते हैं, खुशी का मौका आए तब भी हम मीलाद करते हैं, गम का मौका आए तब भी हम मीलाद करते हैं। बम्बई जाना हो तो मीलाद करके जाते हैं, आते हैं तो मीलाद करते हैं। हर वक्त हम अपने नबी के मीलाद की महफिल सजा लिया करते हैं, क्योंकि हमें मीलाद की अहमियत मालूम है। अगर बम्बई का सफर मैं कर रहा हूँ तो नबी के मीलाद का सदका है, ये मेरा मकान है तो नबी के मीलाद का सदका है। मेरे भाई अगर बोलूं ईमानदारी के साथ तो आपके लुहने ज़बान है, ये नबी के मीलाद का सदका है। आपकी आंखें देख रही है, ये नबी के मीलाद का सदका है। ये आपका मकान है, ये नबी के मीलाद का सदका है। अगर हमारे और आपके जिस्म के अंदर जान है तो नबी के मीलाद का सदका है। क्यों ना उस पे निसार किया जाए, क्यों ना नबी के मीलाद को मनाया जाए। तो जिसने नबी के मीलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया वो बदर और हुनैन के जिहाद में शरीक हुआ, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाता है। और चौथी बात, मदीनतुल इल्म के बाबुल, खैबर शिकार, शाहे जमाल, आफ्ताब नबुव्वत की दिलकश किरण, शेर खुदा, मौला मुश्किल कुशा, हैदर तर्रार, ज़ी वक़ार, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल अली बिन मुर्तज़ा मनज़्ज़मा मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वकाना सायर ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमानी व यदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की और उसे बयान करने की कोशिश की, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल करवा देगा। और जब उसका इंतकाल होगा तो उसका खातिमा ईमान पर होगा। तो गारंटी है जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की और उसे बयान करने की कोशिश। हजरत अली के फरमान की रोशनी में उलमाए किराम के लिए बशारत है, उलमाए अहले सुन्नत के लिए बशारत है। जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की और उसे बयान करने की कोशिश की, नबी के मीलाद को पढ़ता कौन है? उंगलियां बाद में उठाया करो, पहले समझने की कोशिश किया करो। ये उलमाए किराम है। हज़रत अली फरमाते हैं जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की और उसे बयान करने की कोशिश की, जब वो मरेगा तो उसका खातिमा ईमान पर होगा और बगैर हिसाबो किताब अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करवा देगा। तो नबी के मीलाद को कौन पढ़ता है? उलमाए किराम ही पढ़ते हैं ना। तो ये हज़रत अली के फरमान की रोशनी में इनके लिए खुशखबरी होगी नहीं है। दुनिया में आपके पास दौलतें बहुत है, धन आपके पास बहुत है, सरमाया आपके पास बहुत है, जमीन जायदाद आपके पास बहुत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े बंगले में रहते हो। बताओ ये दौलतें आपके काम आएंगी? ये दौलतें कब्र में आपके साथ जाएंगी? इन दौलतों से आप कब्र में कुछ बना सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं? क्या इतनी मोहलत मांगोगे कि रुक जाओ, 2 करोड़ रुपए अपने लड़के से मंगवा लो, इतनी जमीन अपने नाम लिखवा लो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आपके पास आपकी दौलतें नहीं जा सकती है। सबसे कीमती सरमाया क्या है? आपका इंतकाल, आपका खातिमा अगर ईमान पर हो जाए और हालत ईमान में आपका अगर इंतकाल हो जाए, दुनिया की दौलत से बढ़ के दौलत ईमान लेकर के जा रहे हो, दौलत ईमान लेकर के जा रहे हो। और ये दौलत अगर लेकर के चले गए तो दुनिया की दौलत की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। तब कहने वाले ने कहा है, कौन कहता है कि खाली जाएंगे दुनिया से, हम साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह, लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। तो ये दोस्त कोई दुनिया से ईमान के साथ जाना ये सबसे कमाल की बात है और ये अल्लाह के फजल पर है। अल्लाह जिसे चाहेगा, जिसका इंतकाल हालत ईमान में होगा, ईमान पर होगा। हज़रत अली ने फरमाया है जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की है और उसे बयान करने की कोशिश की है तो उसका इंतकाल होगा, तो उसका खातिमा ईमान पर होगा। अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हज़रत अली के फरमान की रोशनी में अब पता चला है मीलाद पाक की अहमियत क्या है। और मेरे रज़ा ने तो ऐलान किया है, अर्श तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्र फारस मस्जिद के तेरे। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजाओ अपने दरवाजे पर मीलाद पाक की महफिल,
रचाओ मिलाद पाक की महफिल, और ऐसी महफिलों में भैया जब आया करो तो सलीके के साथ बैठा करो। लास्ट बात आपसे करूंगा, एक बात बता, एक आदमी ऐसा है जो मस्जिद में गया, कलमा पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, चल चल के पढ़ रहा है या बैठा हुआ है, लेकिन इस हिसाब से पढ़ रहा है कि अदब नाम की कोई चीज नहीं है, खत्म हो जाएगा तो बताओ उसका पढ़ना काम आएगा? दिल से सुनिए अब। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन उसे मालूम है ये खाना खुदा है, मस्जिद में गया और अदब के साथ सलीके के साथ बैठ गया, अदब के साथ बैठा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ अदब के साथ खाने खुदा का लिहाज रखते हुए वो बैठ गया है, तो जितनी सांस लेगा हर सांस पर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। इसे वो खाने खुदा में है, अल्लाह के घर में है। एक वो है जो पढ़ रहा है लेकिन अदब नहीं कर रहा है, उसका पढ़ना बेकार है। एक वो है जो कुछ नहीं पढ़ रहा है लेकिन अदब कर रहा है, तो उसका बैठना भी कारगर है। एक गैरतदार मुसलमानों, अब मेरा जुमला नोट करो, अगर वो खाना खुदा है तो ये मीराद मुस्तफा है। अगर वहाँ बेअदबी करोगे तो गुनाह मिलेगा, यहाँ भी बेअदबी करोगे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। जरूरी ये है जब भी मीराद पाक पे आया करो, अदब के साथ बैठा करो, तरीके के साथ बैठा करो और ईमानदारी के साथ बैठा करो, ये सोच के बैठा करो। ऐसी महफिलों में मदीने वाले आका तशरीफ लाया करते। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है। ये हमारी नजरों में ताकत नहीं है, हमारी आंखों में वो बीनाई नहीं है, हमारी आंखों में वो नूर नहीं है कि हम देख सकें। लेकिन जब देखने वाली नजर होती है तो सोती हुई आंखों से नहीं बल्कि भाईजी का है मदरसा, जागती हुई आंखों से पैगंबर का दीदार करता है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। देखने वाली नजर होती है, समझने वाली निगाह होती है, ईमानदाराना आंख होती है, तब कसम खुदा की उस हाजी मलम से, मालूम कर हाजी मलम से, एक बंबई में रहने वाले लोगों, हजरत हाजी मलम के मज़ार पर हाजिरी हुई होगी तो ईमानदारी के साथ सोच लेना, यही हजरत हाजी मलम है जब अपने दरवाजे पर ये महफिल मेला सजाया करते थे। जब तक मेला की महफिल खत्म नहीं हो जाती तब तक खड़े रहा करते थे, बैठा नहीं करते थे। लोगों ने कहा हजरत बैठ करके सुनिए, बैठ जाइए। तो आपने फरमाया जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो, जो मेरी निगाहें देख रही है वो तुम नहीं देख रहे हो। तो लोगों ने कहा हजरत बात क्या है? तो आपने फरमाया था इस महफिल में मेरा आका तशरीफ फरमा है, मेरा आका तशरीफ फरमा है, मेरा यावर आया हुआ है, मेरा हामी आया हुआ है, मदीने का ताजदार आया हुआ है। अरे जहाँ आका बैठे हो अब्दुल रहमान बैठ जाएंगे, हो नहीं सकता। देख नहीं पाते हैं तो इतनी बात तो समझ ही सकते हैं कि हमारे और आपके आका की जलवादरी होती है। ये जमीन कितनी बेहतरीन है, ये महफिल कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे हो कि अपने आका की मीलाद की महफिल में बैठे हो। अल्लाह ताला हमारे और आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा और आपका रब कुरान में फरमाता है वमा सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने तुम्हें सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। ये प्यारे हबीब की रहमत ही का सिला है जो आज हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ नहीं टूट रहे हैं, अजाब नहीं नाजिल हो रहे हैं। वरना गौर करो कौन सी कमी है जो मुसलमानों के अंदर नहीं पाई जाती है। दलाल ये है, मक्कार ये है, जुआबाज ये है, बेनमाजी ये है, जनाकार ये है, सूदखोर ये है, जितनी बुराइयां तलाश हो जाती है में पाई जाती है, कौम मुस्लिम ही में पाई जाती है। फिर भी अगर अजाब हमारे ऊपर नहीं आ रहा है तो इसलिए कमाल आपका नहीं, कमाल आमिना के लाल का है। रसूल बावकार की वजह से हम पे और आपका अजाब नहीं आ रहे हैं। वरना जितनी कमियां हमारे और आपके अंदर पाई जाती है इनमें से कम कमियां भी और उम्मतों के अंदर पाई जाती थी तो उनकी शक्लें बिगाड़ दी जाती थी। क्या क्या नहीं हो गया है। आज तुम्हारे ऊपर अगर अजाब नहीं आ रहा है तो ये सदका है अमीना के लाल का, एहसान है महबूबे दावर का, करम है मदनी ताजदार का। क्यों नहीं पढ़ते हो, ऐलान करते हो, और क्यों नहीं दुनिया वालों को बताते हो, क्यों नहीं ये सवाब पढ़ाते हो। वहाँ का जो जो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और सवाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने उस आवाज पे होता है। अरे तेरा तेरे टुकड़ों पे बड़े खैर के होकर के न ढाल, चिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आसमां खान जमी खान समाना मेहमान साहिबे खाना लकब किसका
रब्बिल ए महबूब मैंने तुम्हें सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। बाहर में दुआ करेंगे अल्लाह के कायनात बोलने में अगर किसी तरह की कोई गलती कसरन या सहमन या फिर या मानन रह गई हो तो इसे अपने हबीब के सदके में माफ फरमा करके अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाओ।